Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss various constraints in MySQL. These 5 constraints we will cover in this video: primary key constraint, unique constraint, default constraint, not null constraint and check constraint. Before starting the definition of these constraints, let us first understand what are constraints. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखो जनरल, तो इसका मीनिंग होता है कंडीशन. कंस्ट्रेंट मीन्स यू हैव टू अप्लाई सम कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. और अगर मैं MySQL की बात करूं, so in that we are having data in the form of rows and columns, in the form of table. So that means we will apply the constraints on our column, and even we can apply the constraints on our table also. Constraints are the rules enforced on the data columns of a table. Rules means कि हम कुछ conditions specify कर देंगे for that particular column. These are used to limit the type of data that can be go into the table. उसमें आपकी डेटा की एक लिमिटेशन हो जाएंगे. लिमिट द टाइप ऑफ डेटा. सपोज मैंने एक मार्क्स का कॉलम लिया, उसमें मैंने उसकी लिमिट लगा दी कि फ्रॉम 0 to 100 वी कैन एंटर द डेटा. दिस एंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, तो अगर हमसे कोई बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हमने कर दी है, तो हमारे को एक्यूरेसी का भी पता लग जाता है. सपोज मैंने कोई रो इंसर्ट करी और मैंने सारी वैल्यू चेंज कर दी एक्सेप्ट रोल नंबर, तो अगर मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा रखी है, तो देन इट विल शो मी एन एरर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज कंस्ट्रेंट्स वन बाय वन. आफ्टर गोइंग थ्रू विद दीज कंस्ट्रेंट्स, वी विल अप्लाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स इन अ सिंगल टेबल. So I request you to watch the video till end, because after these constraints, we will be doing the practical also of all these constraints. First one is your primary key constraint. Primary key क्या होता है? हर एक टेबल के मीन्स जो मेरी टेबल होगी, उसमें हर एक रो के लिए उस कॉलम की वैल्यू क्या होगी? यूनिक. फॉर एग्जाम्पल योर रोल नंबर, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हर एक स्टूडेंट का क्या होगा? यूनिक. If I have not applied the primary key constraint, और अगर मैं एक रो इंसर्ट कर दी विद रोल नंबर 1 और मैं दूसरी रो भी इंसर्ट कर दूं विद रोल नंबर 1, तो विल इट जनरेट एन एरर? नो. अगर मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई करूंगी तो देन इट विल शो मी द एरर. सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी कीज वैल्यूज मस्ट नॉट बी नल. प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट है मीन्स जिस कॉलम को मैंने प्राइमरी की बनाया है, उसमें आपकी नल वैल्यूज नहीं हो सकते. These are the various points related to the primary key constraint. As you know, we are having only one primary key in our table, so we can apply primary key constraint only on one column. It cannot have a null value, and it must be unique for every row. हर एक रो के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? यूनिक. And the syntax to declare the primary key is, suppose I am creating the table student, and this is the roll number, column name, integer, its data type, और यहाँ पर just आपने क्या लिखना है? primary key. Next is my unique constraint. अब unique का मतलब भी क्या होता है? different. अब कहोगे मैम अगर primary key में भी values different है, unique key में भी values different है, तो इन दोनों में difference क्या हुआ? There is one major difference between these two constraints. Primary key cannot take null values, but my unique constraint can have null values. Similarity तो दोनों में ये है कि दोनों में आपकी unique values होंगी. ठीक है. Second difference, primary key जो है मेरा एक कॉलम पर अप्लाई होगा, but unique key मेरे पास एक से ज्यादा हो सकती है. और unique key में मेरे पास जो कॉलम होगा उसमें मैं null values भी लिख सकती हूँ. The purpose of a unique key is to ensure that the information in the column for each row must be unique. And unique key constraint can have the null values. And the syntax is,
here I am taking the column registration number, int and then unique. That means इसकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. बट इफ आई वांट तो इसमें किसी कॉलम किसी पर्टिकुलर रो के लिए वैल्यू नल भी हो सकती है, बट प्राइमरी की केस में कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी. नेक्स्ट इज माई नॉट नल कंस्ट्रेंट. नेम से ही क्लियर है, वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं बट नल नहीं होगी. एम्प्टी आप कोई भी वैल्यू इसमें नहीं रख सकते. द कॉलम हैविंग नॉट नल कंस्ट्रेंट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज एंड द सिंटेक्स इज I am applying the not null constraint on my name column. Name, its data type, and here I am writing not null. That means values repeat हो सकती हैं, but null नहीं होगी कोई भी value. And my next constraint is default constraint. Default constraint means अगर मुझे किसी column की default value set करनी है, तो I can do that with the help of default keyword. और obviously अगर user खुद से कोई value provide करेगा, so then default value, then that value which is provided by the user will be considered. If user will not provide any value, so then the default value will be considered. Default constraint is used to assign the default value to a column when user does not provide any value. However, if a user provides any value, then it will be overwritten. तो वो default value हट करके जो user enter करेगा वो वैल्यू कंसीडर होगी. नाउ सी द सिंटेक्स ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. आई हैव अप्लाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऑन जेंडर कॉलम. जेंडर, इट्स डेटा टाइप. अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डिफॉल्ट एफ. और सिंस द डेटा टाइप ऑफ जेंडर इज varchar, सो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो मुझे किस में लिखनी होगी, विद इन कोट्स. अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू लेती, सपोज मैंने बोनस लिखा 10%, 10 या जितना आपने परसेंट देना हो, जितनी वैल्यू देनी हो, अगर उसकी डेटा टाइप इंटीजर है तो हियर यू डोंट नीड टू राइट द वैल्यू विद इन द कोट्स. नेक्स्ट लास्ट इज माय चेक कंस्ट्रेंट. चेक मींस किसी चीज को चेक करना कि जो मैं वैल्यू एंटर करा रही हूँ वो उस रेंज के अंदर आ रही है या नहीं. लेट्स सपोज आई हैव क्रिएटेड द टेबल ऑफ स्टूडेंट डेटा और उसमें मैंने कॉलम लिया मार्क्स नेम से. अब जो मैंने एग्जाम लिया था उसमें तो 100 मार्क्स का वो टोटल था, ठीक है. अब मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, फ्रॉम 0 to 100. इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि जब पेपर ही 100 मार्क्स का था तो इससे ज्यादा मार्क्स तो नहीं आ सकते. तो वहां पर मैं चेक कंस्ट्रेंट लगा सकती हूँ कि जो भी मैं मार्क्स एंटर करूं दैट मस्ट बी इन द रेंज फ्रॉम 0 to 100. और इफ आई एम वर्किंग ऑन द एम्प्लॉय टेबल, मेरे पास सैलरी का कॉलम है, तो अगर मुझे पता है कि मेरे सभी एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 से कम है, तो आई कैन अप्लाई द चेक कंस्ट्रेंट कि सैलरी मस्ट बी लेस देन 50,000. सो द चेक कंस्ट्रेंट एंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई द सर्टेन कंडीशन, कि हम जो कंडीशन देंगे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यूज. आप इवन इसमें इन ऑपरेटर भी ले सकते हैं. सपोज मैंने स्ट्रीम का एक कॉलम लिया, उसमें चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया. अब उसमें आई एम हैविंग 3 स्ट्रीम्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड मेडिकल. तो आप वहां पर इन ऑपरेटर भी लगा सकते हो कि आपकी स्ट्रीम की वैल्यू इन्हीं में से होंगी, इसके अलावा नहीं हो सकती. एंड द सिंटेक्स इज मार्क्स, जो भी आपका कॉलम का नेम है, इंट डेटा टाइप. चेक के बाद ये ब्रैकेट जरूर लगानी है आपने. मार्क्स जो आपके कॉलम का नेम है, बिटवीन 0 and 100. दैट मीन्स कि मैं जो भी मार्क्स एंटर करूंगी दैट मस्ट बी इन द रेंज फ्रॉम 0 to 100. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट ऑल these 5 constraints in a single table. So as you can see, I have opened my MySQL now. I am using, first of all, I can show you my databases with the command show databases. Let's work upon this class 12 database. Use class 12. If you want to see the tables in the database, so you can write tables, show tables command. So only one table is there, that is student. Now I am creating one table. Create table, the name of the table. Let's suppose I am writing the name of my table is demo constraint.
ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, स्टूडेंट का रोल नंबर लिया, डेटा टाइप इंटीजर, इसको मैंने सेट कर दिया प्राइमरी की। अब प्राइमरी की मींस इसकी वैल्यू जो मैं रोल नंबर एंटर करूंगी वो नल नहीं हो सकती और यूनिक होगी, और एक ही कॉलम पर मैं प्राइमरी की को अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट सपोज मैंने लिया रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए डेटा टाइप सपोज आई हैव टेकन varchar, लेट्स सपोज 5। अब इसके लिए सपोज मैंने ले लिया यूनिक। अब यूनिक कंस्ट्रेंट मींस जितनी वैल्यूज होंगी वो सबकी अलग होंगी, ठीक है, बट नल वैल्यूज मेरी उसमें हो सकती है। प्राइमरी की क्या कहती है, उसमें नल वैल्यूज नहीं होंगी, बट द कॉलम विच इज हैविंग यूनिक कंस्ट्रेंट दैट कैन कंटेन द null values. My next just a second. My next column is name. Name में हमने दे दिया डेटा टाइप सपोज char, और इसको मैंने दे दिया कंस्ट्रेंट नॉट नल। नॉट नल मीन्स की वैल्यूज रिपीट तो हो सकती हैं, बट इसमें आपकी कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी। अगर आप किसी इस कॉलम के लिए किसी भी रो के लिए वैल्यू नल रखोगे तो देन इट विल जनरेट यू एन एरर। नेक्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस विद जेंडर varchar 3 एंड देन डिफॉल्ट, और जेंडर में मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी बेटा, f। अगर मुझे खुद से मेल जेंडर एंटर करना है तो आई हैव टू एंटर दैट एक्सप्लिसिटली, अदरवाइज इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू। माय लास्ट कंस्ट्रेंट इज चेक कंस्ट्रेंट। लेट्स अप्लाई दैट कंस्ट्रेंट ऑन मार्क्स, डेटा टाइप इंटीजर एंड देन चेक, उसके बाद ब्रैकेट, मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100, कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स हम लोग एंटर करेंगे दैट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 0 to 100। आप इसमें इन ऑपरेटर के थ्रू कंडीशन चेक कर सकते हो। चेक कंस्ट्रेंट में लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज करके आप कोई भी कंडीशन लेकर उसको चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेक कंस्ट्रेंट। ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। तो एज यू कैन सी दिस टेबल इज क्रिएटेड नाउ, ठीक है। अब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर चेक करना हो, so for that we are having desc describe command and then demo constraint। तो अब देखो जो मेरा रोल नंबर है इसमें नल मैं ले सकती हूँ, नो। क्यों नहीं ले सकती, बिकॉज रोल नंबर इज माई प्राइमरी की एंड प्राइमरी की कैन नॉट टेक द नल वैल्यूज, और यहाँ पर की क्या आ गई, प्राइमरी की। डिफॉल्ट वैल्यूज मीन्स हमने खुद से डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की है। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब इसके लिए मैंने क्या लिया, यूनिक। यूनिक में आपकी वैल्यूज नल हो सकती हैं, तो नल के आगे क्या आ गया, यस, और की में आपके आगे आ गया यूनिक। आफ्टर दैट आई हैव टेकन द कॉलम नेम विद डेटा टाइप varchar, और उसमें कौन सी कंस्ट्रेंट अप्लाई की है, नॉट नल। तो नल, नॉट नल वाले में तो नल ऑब्वियसली नहीं हो सकती वैल्यूज। जेंडर varchar, नल वैल्यूज हो सकती हैं। डिफॉल्ट के आगे क्या आ गया बेटा, f। That means I have specified the default value for this column as f। उसके बाद मैंने मार्क्स वाले कॉलम पर चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई की है, that means मार्क्स बिटवीन 0 and 100, बट वो नल वैल्यूज मेरी ले सकता। Let's insert the rows in the table now. Now let's insert the row, insert into table name demo constraint, एंड देन वैल्यूज। अब मैं फर्स्ट रो इंसर्ट करी बेटा, रोल नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नंबर लेट्स सपोज S101, देन नेम लेट्स सपोज निशा, देन जेंडर F एंड देन मार्क्स 100, ठीक है। अब इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, फर्स्ट रो इंसर्ट होगी। If you want to check this, select star from demo constraint, ठीक है। फर्स्ट रो गेट्स इंसर्टेड। अब देखो मैंने सेकंड रो इंसर्ट करनी है, मैंने क्या करा,
रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया और मार्क्स चेंज कर दिए, ठीक है। बट मैंने रोल नंबर चेंज नहीं किया, रोल नंबर क्या रखा मैंने, वही 1, ठीक है। अब फर्स्ट जो है मेरा कॉलम दैट इज रोल नंबर, उस पर मेरी कौन सी की है, प्राइमरी की। तो अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो इट विल शो मी एन एरर कि डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की डेमो कंस्ट्रेंट डॉट प्राइमरी, कि आपका जो रोल नंबर है वो तो प्राइमरी की है, हम उसमें रिपीटेड वैल्यूज नहीं ले सकते, और प्राइमरी की में हम नल वैल्यूज भी नहीं ले सकते। लेट्स ट्राई टू एंटर नल हियर, एंड नल यू हैव टू राइट विदाउट डबल कोट्स, अदरवाइज वो नल एक वैल्यू ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। कॉलम आर नल कैन नॉट बी नल, नल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरी क्या है, प्राइमरी की। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर बेटा 2, तो अब मेरी जो वैल्यू है वो इंसर्ट, रो इंसर्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हो गया, नेक्स्ट इज माय यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या कहती है, वैल्यूज जितनी होंगी यूनिक होंगी, बट नल हो सकती है, ठीक है। अब देखो हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है, अब इस रोल नंबर को हम कर देते हैं 3, यहां से नेम चेंज कर देते हैं, एंड हेयर मार्क्स। अब देखो जो मेरा थर्ड है रोल नंबर, अब उसमें जो S102 है रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कॉलम, वो मैंने रिपीट कर दिया, इस पर मैंने यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा रखी है, तो देन इट विल शो मी द एरर कि डुप्लीकेट एंट्री, जिस कॉलम पर मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रखी है दैट कैन नॉट कंटेन द डुप्लीकेट वैल्यूज। अब नल लिखकर देखो, क्योंकि यूनिक कंस्ट्रेंट में आपका नल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज यूनिक कंस्ट्रेंट कैन टेक नल वैल्यूज, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलम, उसमें क्या है, नेम। नेम पर हमने कौन सी की लगा रखी है बेटा, नॉट नल, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा रखा है, ठीक है। नॉट नल मीन्स वैल्यूज तो सेम हो सकती हैं बट नल नहीं होनी चाहिए। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, S104 कर देते हैं इसको, रोल नंबर 4। अब नेम देखो, सपोज मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा रखी है ना, तो पहले नल लिख करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिए मार्क्स, एरर आ गया, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल। क्यों नहीं हो सकता नल, क्योंकि मैंने उस पर नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखी है। अब डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए चेक करते हैं, निशा नेम आई हैव ऑलरेडी रिटन, forgot to enter the name within quotes, let's write within quotes। अब निशा नेम जो है ऑलरेडी मैंने टेबल में ले रखा है, ठीक है। तो अब जब मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या कह रही है, वैल्यूज नल नहीं एक्सेप्ट करेगा बट रिपीट वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बात जेंडर, जो हमारा जेंडर कॉलम है ऑन दैट वी हैव अप्लाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो क्या लेगा, डिफॉल्ट F। लेट्स टेक अनदर वैल्यू, अभी तक हमने सारी F ही ली हैं, अब हम एक M लेके देख लेते हैं, मेल जेंडर, रोल नंबर 5, S105, नेम लेट्स सपोज पवन, यहाँ पर जेंडर मेल और यहाँ पर मार्क्स 55, ठीक है। अगर हम खुद से जेंडर की वैल्यू देंगे तो देन इट विल टेक दैट वैल्यू, अदरवाइज इट विल टेक डिफॉल्ट वैल्यू। अब डिफॉल्ट वैल्यू कैसे देंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम्स जिसमें आपने वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। अब मैंने क्या लिखा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड कोमा मार्क्स। दैट मीन्स कि मैं इन कॉलम्स की वैल्यूज प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया 6, रजिस्ट्रेशन नंबर S106, नेम लेट्स सपोज स्वाति। अब जेंडर की वैल्यू नहीं दी हमने और मार्क्स यहाँ पर लेट्स सपोज 90। तो व्हेन आई विल प्रेस द एंटर की, क्वेरी ओके, तो अपने आप इसने जेंडर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले ली बेटा, F। बस उसके लिए आपने क्या करना है, व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यूज, फॉर दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ columns here also, कि in which columns you are providing the values. Last is my check constraint. Check constraint means
कि आपने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि जो आपके मार्क्स हैं दैट मस्ट बी इन द रेंज फ्रॉम 0 to 100. लेट्स एंटर द वैल्यूज एक्सेप्ट दिस. इस रेंज के बाहर लिखते हैं. इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज रोल नंबर 7 S107, नेम अजय, जेंडर मेल और मार्क्स सपोज अब मैंने लिख दिए 240. तो देन इट विल शो मी द एरर चेक कंस्ट्रेंट, कि आपकी जो चेक कंस्ट्रेंट है वायोलेट मींस आपने इस रूल को वायोलेट किया है, ब्रेक किया है. तो मैं जो भी मार्क्स डालूंगी दैट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 0 to 100. नाउ लेट्स सी. ठीक है, इस रेंज के अंदर वो सारी वैल्यूज लेगा. लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स. फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. दैट मींस ऑल वैल्यूज मस्ट बी यूनिक. प्राइमरी की कैन नॉट टेक नल वैल्यूज and it must be applied only on the one column. Unique constraint, unique key में क्या होगा, values different होंगी but it can contain null values also and this constraint can be applied on more than one columns. Not null constraint कि आपके इसमें null values को वो accept नहीं करेगा. Next, default constraint is it is used to assign the default value to a column. But if a user provide any value, then that value will be considered. Otherwise, the default value will be considered. Last is my check constraint. ये आपके चेक करेगा कि जो जिस कॉलम पर हमने चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई की है that is satisfying the certain condition or not. I hope all these constraints are clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button. Share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.